हाय एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? चलो, क्या पढ़ाई वढ़ाई की है आपने कुछ या नहीं? कुछ भी हुआ? आई थिंक सो यू मस्ट हैव स्टडीड. So today in my video I'll continue with the lesson number 2 is matter around us pure part 2. So Mrs. Nikki Shweta, your science teacher, is welcoming you all in this lesson. So before starting part 2, just take a recap of part 1. So in part 1 we have studied about the matter, whatever types of matter present around ourselves in the form of mixtures, compounds and the elements. And we had studied about different type of mixtures also, as for example about the solution, colloid and the suspension. We have studied about homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures also. So these all are the topics which we have covered in our part 1. Now in today part 2 we will cover the separation techniques by which we can separate different type of mixtures. But before teaching you that topic, I would like to know that do you all read the lesson or not? So if you have not read the lesson, kindly read the lesson, because reading is important. Again and again I am telling you the same thing, but you should follow my suggestions, because it is very important. Reading of the lesson is very important. If you read, you can understand the things, because in the present scenario I am not physically present to you. So to understand the things you should follow me, okay? And I believe that you follow me very well, okay? So let's start with lesson number 2 is matter around us pure part 2. Okay. So today's topic is separation of components of mixture. In this topic we are going to cover different techniques. There are lots of technique to separate different kind of mixture. अभी सारे मिक्सचर तो एक जैसे हो नहीं सकते हैं, तो अगर सारे मिक्सचर एक जैसे नहीं है तो उनको सेपरेट करने की टेक्निक भी अलग अलग होगी. मैंने आपको पहले ही इस लेसन में बताया था कि मिक्सचर्स आर द सब्सटेंसेस विच आर जस्ट मिक्स्ड टुगेदर. वो एक साथ केमिकल कंबाइन करके नहीं बने हैं, दे आर जस्ट मिक्स्ड. सो इफ दे आर जस्ट मिक्स्ड देन इट इज easy to separate them also. अगर कोई दो चीज़ें हमने जस्ट मिक्स करके रखी हैं, अगर आपने मान लो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आपने मुरमुरे लिए हैं और उसमें थोड़ा फरसान मिक्स किया है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि विल यू सेपरेट दैट, तो आप बोलोगे हाँ मेहनत तो लगेगी मैम, लेकिन मैं उनको सेपरेट कर लूँगा, बिकॉज दैट इज़ अ मिक्सचर. लेकिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि मैं पानी दे रही हूं आपको, उसमें से हाइड्रोजन को अलग कर दो और ऑक्सीजन अलग कर दो, तो इट वुड बी नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आउट ऑफ वाटर. सो मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड एंड देयर आर वेरियस टेक्निक्स, and we'll study some of these techniques one by one. So the technique which I have described here is centrifugation. In the method of centrifugation, the centripetal and centrifugal forces are used to separate lighter and heavier components of mixture of two immiscible liquids. This process is used to separate very small solid particles from a liquid mixture. सेंट्रीफ्यूगेशन, आपने मिक्सर ग्राइंडर चलाया है अपना कभी? उसमें कभी आप जब किसी सामान को पीसते हो तो वो आप देखते होंगे कि पीसने के बाद वो सारा जार से चिपक जाता है, उसके बीच में एक ब्लेड होती है, लेकिन द ऑल सब्सटेंसेस आर टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द ब्लेड एंड टूवर्ड्स द जार के जो वो किनारे पे होता है उस पे आके चिपक जाता है. So first of all we'll understand the centripetal and centrifugal force. हम व्हीकल को चलाते हैं, आपने देखा है, अगर सर्कुलर पाथ में व्हीकल को चलाओगे तो हम गिरते नहीं है. क्यों?
बिकॉज द फोर्स विच इज कीपिंग अस टूवर्ड्स द सेंटर, हम जो भी सर्कल में चला रहे हैं उसके सेंटर की साइड पे जो फोर्स रखता है वही हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुआ, हमें सेंटर से दूर रखने वाला फोर्स। तो अगर आप मिक्सचर ग्राइंडर में किसी चीज को पीस रहे हैं तो वहां पे यही दो फोर्स आपके काम करते हैं, है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हमेशा मिक्सचर ग्राइंडर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। घर पे आपने कभी मम्मी को जो दूध की मलाई रखती है मम्मी, उससे घी बनाते हुए देखा होगा। तो अगर वो मिक्सर को यूज नहीं कर रहे हैं तो शी मस्ट बी यूजिंग हैंड, एक हैंड चर्नर भी मिलता है, उससे भी वो मिल्क से बटर को बनाते हैं। सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द टेक्निक जहाँ पे कि आपको जिस भी सामान को सेपरेट करना है, जिन मिक्सचर्स को सेपरेट करना है, उनको आप सर्कुलर पाथ में घुमाते हो, जैसे मिक्सर में, या आप जानते हो वॉशिंग मशीन में कपड़े से पानी को बाहर निकालने के लिए ड्राइंग जब करते हैं, देयर ऑल्सो सेम टेक्निक इज फॉलोड। Example I have given here, milk. Milk is the mixture of fat, water and other constituents. Using the method of centrifugation, most of the fat can be separated from milk. In milk, fat is suspended throughout the milk, which is separated out using the method of centrifugation. जैसा मैंने आपको बताया, मिल्क जब आप नॉर्मल दूध लेते हो तो उसमें आप देख लेंगे कि फैट है, उस दूध में फैट है, लेकिन आप उसको अलग नहीं देख पा रहे हो। फर्स्ट इट इज प्रेजेंट इन द यूनिफॉर्म फॉर्म, सब जगह है फैट, बट व्हेन यू आर यूजिंग दिस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, उसको गोल गोल घुमा के चर्निंग करके जब आप निकालने की कोशिश करोगे, दैट टाइम द फैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क। मिल्क में वाटर भी है और मिल्क में फैट भी है, तो मिल्क और वाटर, फैट और वाटर जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होंगे। एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन सिर्फ मिल्क के लिए ही नहीं, पैथोलॉजिकल टेस्ट ऑफ ब्लड एंड यूरिन। कई बार आप बीमार पड़ते हो तो आपको डॉक्टर बोलता है कि ब्लड टेस्ट करवा के आ जाओ या यूरिन टेस्ट करवा के आ जाओ, तो वहाँ पे ब्लड के टेस्ट करने के लिए भी डॉक्टर्स ये सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक यूज करते हैं। ब्लड बहुत कम अमाउंट में लेते हैं तो वहाँ मिक्सर ग्राइंडर को यूज नहीं कर सकते हैं। एक छोटी मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो ट्यूब्स में डाल के ब्लड को और उसमें घुमाया जाता है। इन सेपरेशन ऑफ फैट फ्रॉम मिल्क, इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज द वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। ड्राइंग जब आप वॉशिंग मशीन में करते हैं तो देयर दैट ड्रायर इज मूविंग इन वेरी हाई स्पीड, तो उस हाई स्पीड से गोल गोल घूमता है। आप कभी वॉशिंग मशीन को देखो तो वहां पे भी सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, पानी जो है वो कपड़ों से दूर चला जाता है और वो बाहर निकल जाता है। सेम टेक्निक इज फॉलोड इन द सेपरेशन ऑफ फैट फ्रॉम द मिल्क। सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज वन ऑफ द टेक्निक टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो पहली टेक्निक हमने पढ़ ली सेंट्रीफ्यूगेशन की, फॉलोड फॉर मिल्क। नेक्स्ट मेथड इज डीकैंटेनेशन। डीकैंटेशन क्या होगा? इट इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल। सी द टर्म इमिसिबल का मतलब क्या है? दो ऐसी चीजें जो आपस में मिक्स नहीं हो पाए। एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते। ऑयल इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आप पानी में तेल को मिला के देखो, तेल जो है ऊपर वाले सरफेस पे रहता है, ठीक है। सो अगर मैं पानी और तेल को मिला दूं और आपको बोलूं कि आप इसको सेपरेट करो, देन हाउ वुड यू लाइक टू सेपरेट दैट मिक्सचर? दैट प्रोसेस इज डीकैंटेशन। सो मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर in a mixture of two immiscible liquids, lighter one and heavier one form separate layer. अभी अगर मैं पानी और ऑयल को मिक्स करूं तो ऑयल इज लाइटर देन वाटर, दैट्स वाई इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पानी के सरफेस पे रह जाता है ऑयल। तो अगर आपको उसको अलग करना है तो क्या करेंगे? एक सेपरेटिंग फनल लेंगे और उसमें पानी और वो ऑयल का मिक्सचर डालेंगे और उसको अनडिस्टर्ब्ड आप रखने दोगे, ठीक है। तो जब वो अनडिस्टर्ब रहेगा तो क्या होगा? पानी नीचे वाली लेयर पे रहेगी और ऑयल जो है वो ऊपर वाले लेयर पे रहेगा। आप उस सेपरेटिंग फनल में से जो नीचे वाली लेयर है पानी, उसको सेपरेट कर लोगे और उसके बाद
आपका जो ऑयल है वो ऊपर वाले सरफेस पे बच जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे इस टेक्निक को यूज करते हैं। सो अगर कोई पूछे कि हाउ डू यू सेपरेट, सी decantation methods, name is not written in your textbook, बट ऑयल और वाटर का वहाँ पे मिक्सचर को सेपरेट करने की टेक्निक दी है एंड वन फिगर इज ऑल्सो गिवन, वन ऑफ द फिगर इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने का एक फिगर दिया है आपके बुक में, और लेकिन वहाँ पे द मेथड का नाम इज नॉट मेंशन, दे हैव नॉट मेंशन decantation. If you see in your textbook, it is present on page number 20. The activity is 2.3.3. Page number 20, 2.3.3. There the method is decantation. Milk and that centrifugation technique 2.3.2. Page number 19. So these all methods are mentioned in the textbooks also, but for more clarity, I would like to explain these things to you. So you can go through the textbooks also and side by side to the my recordings also. So वीडियो भी आप देखोगे और टेक्स्ट बुक बाद में पढ़ लोगे तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी. With the pencil you write the name of the methods there. जैसे 2.3.2 पे आपको कौन सा मेथड यूज होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन. 2.3.3 पे कौन सा मेथड हो जाएगा? decantation. So these are the methods which their names you should mention in your textbook. So आपकी क्लैरिटी वहां पे हो जाएगी. So decantation for the separating two immiscible liquid, जो दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं उनको सेपरेट करने के लिए decantation. Next method is of sublimation. Sublimation, already the term sublimation we have explained in lesson number 1. But for your remembrance, sublimation क्या है? Sublimation is the technique where solid is directly converted into gas, not going through the liquid phase, and gas is directly converted into solid, नॉट गोइंग थ्रू द लिक्विड फेज. लिक्विड फेज नहीं होगा, सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाएगी और आपका जो सॉलिड डायरेक्टली गैस बन जाएगी और गैस डायरेक्टली सॉलिड बन जाएगा, बीच में लिक्विड नहीं बनेगा. वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज ऑफ कैम्फर, कपूर जो होता है पूजा में जलाते हैं वो. अदर देन दैट नेफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड. सो ईफ अगर मैं आपको बोलूं कि कपूर और आपको सैंड, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है और कोई बोले कि यू सेपरेट दैट, देन हाउ वुड यू सेपरेट दैट मिक्सचर? बाय दैट प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. दो ऐसे चीजों को मिला दिया है और आपको बोल रहा है सेपरेट करने, तो आप कैसे सेपरेट करोगे? बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन यू आर गोइंग टू सेपरेट दैट. सी दिस फिगर इज प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. This same figure is present in the textbooks also. तो क्या किया है नीचे? अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट. आउट ऑफ दैट अमोनियम क्लोराइड इज द सब्लिमेटरी सब्सटेंस है ना, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस बनाएगा. सॉल्ट वैसा सब्सटेंस नहीं है, नमक को मिला दिया और अमोनियम क्लोराइड को, और नीचे से उसको गर्म कर रहे हैं. वो स्पिरिट लैंप लगा के आप गर्म कर रहे हो. और कॉटन प्लग क्यों लगाया है? कि वेपर बन के वो अमोनियम क्लोराइड ऊपर उड़ ना जाए, तो उस वेपर को रोकने के लिए वहां पे उन्होंने उस फनल के माउथ को कॉटन प्लग मीन्स क्या? रुई के टुकड़े से उसको बंद कर दिया है ना. एंड दे आर हीटिंग दैट. व्हेन यू हीट दैट, सॉल्ट तो अपनी जगह पे रहेगा, अमोनियम क्लोराइड क्या होगा? गैस बनने लगेगा, लिक्विड नहीं बनेगा. व्हेन यू हीट अमोनियम क्लोराइड इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू गैस. क्यों कन्वर्ट होगा गैस में डायरेक्टली? बिकॉज इट इज अ supplementary substance, so it changes into gas and vapors जो है उसके इकट्ठा होना शुरू होंगे. थोड़े टाइम के बाद जब आप ठंडा कर दोगे उसको तो वो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बन के सेपरेट हो जाएगा, है ना. सो देयर बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट मेथड, हमने क्या क्या मेथड्स यहाँ पे पढ़ लिए? वी हैव स्टडीड
सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें कि मिल्क से फैट को अलग कर रहे थे, एंड देन मिल्क से फैट को अलग कर रहे थे कैसे? बाय यूजिंग द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने क्या बताया? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर के टुवर्ड्स रखने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है किसी भी सब्सटेंस को सेंटर से दूर रखने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब आप मिल्क को मिक्सर में घुमाओगे या आपने कपड़े सुखाने के लिए मशीन में डाले हैं, एट दैट टाइम दीज टू मेथड्स आर वर्किंग देयर, सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। देन वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट मेथड विच इज डीकैंटेशन। डीकैंटेशन में क्या हो गया? दो ऐसे लिक्विड जो कि आपस में मिक्स नहीं होते हैं। क्या एग्जाम्पल लिया था हमने वहां पे? ऑयल एंड वाटर। ऑयल इज लाइटर देन वाटर, दैट्स वाई इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। आप पानी और तेल को मिक्स करोगे तो तेल जो है वो सरफेस के ऊपर रह जाएगा। देन व्हाट वी शुड डू, हम एक फनल लेंगे, सेपरेटिंग फनल एक डिवाइस होती है, एंड देयर द वाटर इज सेटल्ड डाउन एंड ऑयल इज प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। तो वहां पे एक कॉर्क जैसा ओपनिंग रहेगा, उसको खोलेंगे, वाटर को सेपरेट कर लेंगे और हमारा ऑयल जो है अलग हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट। देन द थर्ड मेथड वी हैड स्टडीड दैट इट इज सब्लिमेशन। Sublimation is followed for the mixture of two substances, which is out of that one should be sublimatory in nature. Sublimatory nature मतलब क्या? जब solid directly gas में convert हो जाए, that we called as sublimatory substance. So दो ऐसे substance जिसमें से एक sublimatory है, जैसे example ले रही हूं मैं यहाँ पे, अगर salt और camphor को आपने mix कर दिया, कपूर को, या सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मैंने, तो इफ वी कैन सेपरेट दीज सब्सटेंसेस तो वो हम कहेंगे सब्लिमेशन से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टेक्निक, हियर आई हैव मेंशन्ड अबाउट द नेक्स्ट टेक्निक विच इज क्रोमेटोग्राफी। See, all these names are very much newer to you, but the techniques, while I am explaining, you can see that these techniques are not that much difficult. Some of the techniques are of the general uses also. So chromatography, here how do we separate that? Here in your textbook it is given in the activity 2.3.1 about the chromatography. That activity is present on page number 19. So you mentioned that name here, chromatography. See, if we are here, I would like to explain you how to separate the components of ink. आपके पेन की जो इंक होती है, it is made up of color and water. Different type of colors are used there. So ink is the mixture of different types of colors and the water. ठीक है, water में dye means color होता है, ठीक है, water में dye को mix करके किया है. How do we check, how do we separate that? It is based on the principle of travel speed of components of a mixture. Travel speed क्या? अभी क्रोमेटोग्राफी को यूज कैसे करते हैं? सो क्रोमेटोग्राफी कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे आपकी बुक में क्या दिखा है कि यू शुड ड्राई द इंक। इंक को गर्म करेंगे, डायरेक्टली नहीं, वाटर बाथ पे। जैसे चॉकलेट को आप कैसे पिघलाते हो, डायरेक्टली उसको गैस पे नहीं रखते हैं, आप पानी गर्म करते हो और उसमें चॉकलेट को रख के गर्म करते हैं ना। चॉकलेट का कभी केक बनाने के लिए या चॉकलेट बनाने के लिए, the chocolate is not directly heated, we are using water bath, पानी को गर्म करके उसमें चॉकलेट को रख के गर्म करते हैं। सो इंक इज ऑल्सो हीटेड। जब आप इंक को यूज करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या देखेंगे, इंक में से पानी उड़ गया और कलर नीचे बचा रह गया।
तो क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, एक पेपर होता है, स्पेशल पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए, एक स्पेशल पेपर, जैसे फिल्टर पेपर होता है, आपका चार्ट पेपर होता है, वैसा स्पेशल पेपर आता है क्रोमेटोग्राफी के लिए। तो वहां पे क्या करते हैं, इंक में वो जो इंक जिससे भी आपको सेपरेट करना है, उस इंक में उस पेपर को डिप करके रखते हैं। अभी अलग अलग कलर अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उस पेपर के ऊपर अलग अलग बैंड बना के आपको दिखाएंगे। बैंड मतलब कहीं पे मान लो ब्लू कलर को कर रहे हो तो कहीं पे ब्लू दिखेगा, कहीं उससे लाइट ब्लू, कहीं पर्पल, ऐसा अलग अलग कलर, जितने कलर उसमें मिक्स होंगे वो सारे कलर वहां पे उस पेपर पे आपको दिखेंगे। There are many types of chromatography. The dye from an ink can be separated using paper chromatography. जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, there you have to study different types of chromatography. But here the simple technique of paper chromatography is used. आप देखो यहाँ पे कैसे दिखाया है, एक ग्लास है, एक आप क्या कह सकते हो मैं कि एक ये जो पेपर इधर दिखाया है, लाइन ड्रॉन बाय पेंसिल स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। हियर इन द क्रोमेटोग्राफी एक पेपर लिया है इन्होंने और इसी पेपर पे डाई को सेपरेट करेंगे। डाई मतलब जो इंक है आपका, ठीक है। तो ये फिल्टर पेपर ले लेंगे और यहाँ पे एक स्पॉट आप बना दोगे और उस फिल्टर पेपर को आप डुबा दोगे, है ना। ये इंक है यहाँ पे, जिस इंक को सेपरेट करना है, और इस इंक वाले पेपर को आप पानी में हल्का सा डिप करोगे। इतना पानी में ज्यादा इस पेपर को डिप करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। सो यू जस्ट टच द लेवल ऑफ वाटर। इस पेपर को पानी में डिप करके रखेंगे और यहाँ पे आपका इंक है। जैसे जैसे ये पानी ट्रेवल होगा इस फिल्टर पेपर में, ये इंक जो है आपका इस पे सेपरेट होके दिखना शुरू होगा। एंड दैट इज हाउ यू कैन यूज दिस मेथड ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी इन द सेपरेशन ऑफ कलर्स फ्रॉम अ डाई। डाई मीन्स कपड़े वगैरह रंगने के लिए भी डाइज का यूज किया जाता है। डाई मतलब यहाँ पे ये मत सोचना कि आपके हेयर कलर वाले डाई हैं ये। दिस इज द डाई वेयर कलर्स आर यूज्ड। कपड़े को कलर करने के लिए डाई को यूज किया जाता है। इन द सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर। आपको पता होगा नेचुरल कलर बनाए जाते हैं फूल वगैरह से या पत्तों से। तो दीज नेचुरल कलर्स आर ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ सेवरल कलर। सो देयर वी कैन यूज दिस मेथड ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। इन द सेपरेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम ब्लड फॉर पैथोलॉजिकल टेस्ट। दवाइयाँ मिक्स होती हैं ब्लड में, है ना। अगर मान लो आपको ये पैथोलॉजिकल टेस्ट मीन्स वही लैब टेस्ट है ना। तो अगर मान लो कोई इंसान है जो कि ब्लड टेस्ट कराने गया लेकिन उसने कोई दवाई खा रखी है ना। ड्रग मीन्स यहाँ पे दवाइयाँ हैं। सो अगर उसने कोई दवाइयाँ ले रखी हैं तो उस दवाई को कैसे डॉक्टर यूज करे के साथ ब्लड को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो दैट टाइम दिस मेथड कैन बी यूज्ड to separate the drugs from the blood. So this is how chromatography works. So here till this time we have studied which technique. Just to remind, centrifugation we have studied decantation, we have studied about the sublimation. Then we have a discussion about the chromatography here. So here we have discussed these many techniques, and we have this same figure is present in your textbook also on page number 21 in the topic 2.3.5. the same thing is mentioned there. And this technique you can try at your home also just by using a simple paper. पेपर मतलब ये नोटबुक वाला पेपर नहीं, थोड़ा सा आप थिक पेपर का टुकड़ा, जैसे ड्राइंग पेपर शीट वगैरह होती है वैसा किसी पेपर को यूज करके आप एक ट्राई ले सकते हो कि दिस मेथड वर्क्स और नॉट। नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट वन, डिस्टिलेशन।
द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड। यहाँ पे इमिसिबल नहीं है, मिसिबल मीन्स दो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिले हुए हैं। पानी पानी जैसी चीजें हैं ना, एक मान लो पानी है और दूसरा कोई और लिक्विड है और उन दोनों को मिक्स कर दिया और मैं बोल रही हूँ सेपरेट कीजिए। सो दिस वन इज रियली द डिफिकल्ट टास्क टू सेपरेट बिकॉज द लिक्विड्स आर मिसिबल इन नेचर, वो दोनों आपस में मिक्स हो सकते हैं। सो इफ यू हैव टू सेपरेट दैट, the technique which is followed here is distillation. The technique of distillation is based on the difference in boiling points of components of mixture of miscible liquid. आपको जब लेसन 1 मैंने पढ़ाया था तो there a term is there which is boiling point. हर लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वैसे ही अगर मिल्क को बोलेंगे तो मिल्क बॉइल्स एट एनी अदर टेम्परेचर। अगर आप ये एल्कोहल ले तो है एल्कोहल बॉइल्स अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस। तो देयर आर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट लिक्विड। तो अगर हमने दो लिक्विड को आपस में मिला दिया है लेकिन उन दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, देन वी कैन सेपरेट देम। कैसे सेपरेट करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। आपने डिस्टिल वाटर टर्म सुना होगा, है ना। डिस्टिल वाटर में क्या करते हैं, पानी से सारी इम्प्योरिटी को निकाल देते हैं। वहां पे कैसा डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, आपको लिक्विड को गर्म करना है। गर्म करोगे तो लिक्विड क्या में चेंज हो जाएगा, गैस में, वेपर फॉर्म में। वेपर को इकट्ठा कर लेंगे और फिर से उसको ठंडा करेंगे तो वो वापस से आपको लिक्विड फॉर्म में चेंज होके मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, अगर दो लिक्विड है और दोनों लिक्विड आपस में मिक्स है, देन वी स्टार्ट बॉइलिंग दैट लिक्विड। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मान लो अगर हमने अल्कोहल को मिक्स किया है और वाटर को मिक्स किया है, अल्कोहल बॉइल्स एट 70 डिग्री सेल्सियस अराउंड एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम कैसा करेंगे, पहले क्या होगा, अल्कोहल बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उसके वेपर बनने लगेंगे, उन वेपर को हम इकट्ठा करना शुरू करेंगे टिल द टाइम वी अचीव 100 डिग्री सेल्सियस। कब, जबकि वाटर बॉयल होने लगेगा, हम अल्कोहल के वेपर्स को इकट्ठा कर लेंगे, उसको ठंडा करेंगे, अल्कोहल अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। बट सी द मेथड विच आई एम डिस्क्राइबिंग यू इज sounds to be easy, but it is not an easy task to do distillation. So distillation is actually not a possible task at home. Distillation के लिए पूरी एक मतलब टेक्निक और मेथड को यूज किया जाता है। The distillation is used to purify many liquids such as water. आपको डिस्टिल वाटर टर्म मैंने अभी बताया, डिस्टिल वाटर में बिल्कुल प्योर वाटर को यूज किया जाता है। Here this figure is present in your textbook only, mixture of acetone and water. एसीटोन क्या, वो नेल पेंट वगैरह छुड़ाने के लिए जो लिक्विड होता है वो एसीटोन है ना, और उसको हमने वाटर में मिक्स कर दिया है एंड वी हैव टू सेपरेट। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है, 78.4 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, दैट वैल्यू ऑफ एसीटोन बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप गर्म करोगे तो क्या होगा, एसीटोन इज प्रेजेंट इन द वेपर फॉर्म, वो वेपर में चेंज होना शुरू होगा एंड इट इज कलेक्टेड। कहाँ पे कलेक्ट होगा, हमने यहाँ पे दिखाया आपको, ये एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, आप नीचे से ये गर्म कर रहे हैं। गर्म करेंगे तो क्या होगा, एसीटोन जो है वो वेपर बन के यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होगा और यहाँ पे ये कलेक्टिंग ट्यूब में जाने लगेगा। ये बाहर जो आप देख रहे हो, ये ट्यूब के बाहर की जगह है, इसमें पानी है। पानी क्यों भरते हैं, ये एसीटोन का वेपर ठंडा हो जाएगा, जैसे ही ठंडा होगा वो लिक्विड में चेंज होगा और इसमें जमा होना शुरू हो जाएगा। फिर से बोलती हूँ, डिस्टिलेशन के लिए एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है, उसको हम गर्म कर रहे हैं। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, so it is changes into vapor form and that vapor is collected here. By the use of water we lowers down the temperature and due to that lower temperature the acetone का vapor is changes into liquid acetone and it is collected here.
So this is how distillation is done. The same figure is present in your textbook, page number 21, in activity 2.3.6. There in that activity they have shown you about the process of distillation only. Next process is of fractional distillation. See, fractional distillation is a type of distillation only, but here we have more than 2 liquid. एक ही लिक्विड नहीं है, एक से ज्यादा लिक्विड को आपने मिक्स किया हुआ है. So here we have to separate more than liquid, मतलब 2 ही नहीं है, जैसे पहले में आपको सिर्फ 2 दिखाया हमने. Here more than 2 liquids are there. Very common example of fractional distillation followed इन क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल मीन्स क्या? कच्चा तेल. कौन सा वाला कच्चा तेल? आपके घर पे खाने वाला कच्चा तेल नहीं. दिस इज द क्रूड ऑयल विच इज द मिक्सचर ऑफ डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पैराफिन, पेट्रोलियम जेली. सो एक ही लिक्विड आपको समुद्र के नीचे से मिलता है. आपको पता होगा कि अपने यहाँ इंडिया में क्रूड ऑयल के लिए आसाम में जगह है. आपने स्टैंडर्ड 8 में भी पढ़ा है. इन आसाम देयर आर मेनी ऑयल वेल्स. कुएं होते हैं तेल के, वहाँ से निकाला जाता है. एंड इन मुंबई हाई इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड. लेकिन ये ऑयल जब निकाला जाता है, दैट ऑयल इज द मिक्सचर ऑफ ऑल. उसमें ही डीजल होता है, उसमें ही केरोसिन, उसमें ही पेट्रोल होता है, उसमें ही पैराफिन वैक्स होता है, उसमें ही आपका पेट्रोलियम जेली होता है. सो इट इज द मिक्सचर ऑफ ऑल, बट वी हैव टू यूज इट सेपरेटली. हमें सबको अलग अलग करके यूज करना है. टू सेपरेट दैट वी यू हैव टू यूज द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाली मेथड को कहा, ऑयल को वहां से आपने सुना होगा कि रिलायंस की रिफाइनरीज हैं. इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो हैविंग द रिफाइनरीज, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. सो दीज आर द डिफरेंट कंपनीज विच इज सेपरेटिंग द डीजल, पेट्रोल, केरोसिन फ्रॉम दैट क्रूड ऑयल. आप थोड़ा इसके बारे में स्टडी करो, क्रूड ऑयल के बारे में, ठीक है. हम क्रूड ऑयल बाहर के विदेशों से भी मंगाते हैं, जैसे कि वेनेजुएला हो गया, ईरान, इराक, वहाँ पे ऑयल की बहुत सारा प्रोडक्शन होता है. तो वहाँ से हम क्रूड ऑयल को मंगाते हैं और उनको सेपरेट करते हैं. सो फॉर देयर सेपरेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज फॉलोड. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, वो सारे लिक्विड जो होते हैं, मतलब ऑयल में जो डीजल, केरोसिन, पेट्रोल है, दे ऑल आर हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. सो हम एक उनको अलग अलग लेके सबको बॉयल करना शुरू करते हैं. जैसे जैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट आता है, वो तेल जो है अलग अलग होना शुरू होते हैं. मान लो अगर पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया तो पेट्रोल बॉयल होने लगेगा, केरोसिन का आ गया, केरोसिन होने लगेगा. बट दिस इज नॉट द प्रोसेस विच कैन अचीव्ड एट होम. इट इज इन द कंपनीज, रिफाइनरीज में ये काम किया जाता है. पेट्रोल को साफ, वो जो तेल है क्रूड ऑयल को साफ करने का काम. साफ करना मतलब सेपरेशन करना, ठीक है. अभी सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. अब पूछोगे आपके एयर को क्यों सेपरेट करना है. आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर देयर एंड देयर आर डिफरेंट गैसेस. आर्गन गैस अलग, सब ये गैसेस अलग अलग भी हम यूज करते हैं. बट द चीपेस्ट सोर्स ऑफ दैट गैसेस आर एयर. वहां से हमें फ्री में ये गैसेस मिल रही हैं. जस्ट वी हैव टू सेपरेट दीज गैसेस. सो इफ वी हैव टू सेपरेट दीज गैसेस, तो गैस को गैस से सेपरेट हम नहीं कर सकते हैं. तो उसके लिए पहला आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज द गैस, ऑल गैसेस इनटू द लिक्विड फॉर्म. जैसे आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है ना, वैसे ही एयर के गैसेस को भी आपको लिक्विड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. सो द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज व्हाट, यू हैव टू लिक्विफाई द एयर. कैसे लिक्विफाई करेंगे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर. बाय चेंजिंग द टेम्परेचर को कम करके
और प्रेशर को बढ़ा के बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द प्रेशर वी लिक्विफाई द गैस। गैस जो है तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देन वी स्टार्ट बॉइलिंग दैट। एयर को सबसे पहले क्या करेंगे, लिक्विड फॉर्म में चेंज करेंगे। लिक्विड में चेंज करने के बाद उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे, बॉईल करना शुरू करेंगे। अलग अलग गैस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, जैसे जैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो अलग होना शुरू होंगे। तो लिक्विड नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग, ऑर्गन अलग, आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग। तो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर सेपरेटेड। This figure is of your textbook only. It is present on the page number I think 23 in the 2.3.7. अगर आप देखोगे वहां पे तो बॉइलिंग पॉइंट्स आर गिवन इन -183, -186, -196. So this is how these gases are separated. सो टिल द टाइम हमने क्या क्या पढ़ लिया, यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करते हैं। फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर्स वी आर यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, सेंट्रीफ्यूगेशन, डीकैंटेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. These are the techniques which we are using to separate the components of the mixtures. There are different mixtures and if we want to separate them, we should follow these techniques. So these are the techniques which is used here. But other than these techniques, there are some of the simple techniques which are the home techniques also. जैसे कि आपने देखा होगा चलनी को यूज करके मम्मी अनाज में से, ग्रेन्स में से कुछ चीजें अलग कर रही हैं. सो इट इज सीविंग करना उसको बोलते हैं ना. तो सीविंग इज ऑल्सो द टेक्निक, बहुत होममेड टेक्निक है. अगर आपने लोहे को किसी में मिक्स किया है, वेरी सिंपली यू यूज मैग्नेट एंड यू सेपरेटेड, सो मैग्नेटिक सेपरेशन हो जाएगा. सिंपल फिल्टरेशन, पानी को क्लीन करने के लिए फिल्टरेशन की टेक्निक यूज करते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द सिंपल टेक्निक्स ऑल्सो एंड देयर आर सम ऑफ द टेक्निक्स विच इज वेरी complicated also, where these techniques are used in the companies for the separation. जैसे कि आपने fractional distillation देखा, air के components को अलग करने के लिए देखा. So these are the different techniques. But before, so now the next topic is of comparison between compound and element. आपकी बुक में compound और mixture का difference दिया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड का डिफरेंस उन्होंने नहीं दिया है. सो हियर आई वुड लाइक टू मेंशन यू दैट सो कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट. और अगर एलिमेंट्स के नाम पूछूं तो बहुत सारे एलिमेंट्स है. कितने? 117 एलिमेंट्स. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये जो भी नाम आपको याद आते हैं, यूरेनियम, कोबाल्ट, निकेल, दे ऑल आर द एलिमेंट्स. अगर मैं तुम्हें कंपाउंड्स का नाम बोलूं तो वाटर, NaCl, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो उसमें क्या है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो बनते हैं कंपाउंड, और जब एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं तो वो एलिमेंट्स हैं. कंपाउंड्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर फॉर्मूला होता है, जैसे H2O, CO2, NaCl, AlCl3, ऐसे अलग अलग आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. वेयर एज फॉर द एलिमेंट्स इट इज जस्ट द सिंबल. जैसे कार्बन है तो C, ऑक्सीजन है तो O, नाइट्रोजन N, आयन है तो Fe. सो कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला
Elements are represented by symbols. Compounds are endless, बहुत सारे compounds है, whereas elements are 117. Some of the examples here also given. Compounds can be separated by the chemical methods. Elements को separate आप नहीं कर सकते हो. And the next one is the comparison between mixture and compound. This is present in your textbook also. पहला वाला जो था वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है. So mixtures are just physically mixed in any ratio. मतलब कोई फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप कंपाउंड बनाओगे तो वाटर और ऑक्सीजन फिक्स्ड होता है. H2O, 2 हाइड्रोजन और एक, बट मिक्सर के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा फिक्स्ड रेशियो नहीं है. दे हैव नो शार्प और डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जबकि कंपाउंड्स के लिए, जैसे आपको वाटर पता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज फिक्स्ड. बट फॉर मिक्सचर्स इट इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू. दे आर ईदर होमोजीनस और हेट्रोजीनस हो सकते हैं, बट कंपाउंड्स आर होमोजीनस इन नेचर. आपको अगर मैं पानी दे दूं और बोलूं कि पानी अलग अलग है, तो नहीं, वो पानी पूरा एक जैसा होता है, जबकि मिक्सचर्स अलग अलग रेशियो में आप बना सकते हो. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स लाइक फिल्टरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, लेकिन कंपाउंड्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं. उसके लिए आपको केमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा, जबकि मिक्सचर्स को आप कैसे अलग कर सकते हो, अभी हमने बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पे पढ़ी है. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर एंड द कंपाउंड. हियर वी आर एंडिंग विद दिस लेसन, बट बिफोर एंडिंग यू शुड रीड द लेसन प्रॉपरली and take care of yourself. Be healthy, happy. Take care of yourself. Read the lesson properly. Mark all the important points. Thank you. Bye.